नमस्कार दोस्तों, मेरा माय नेम इज़ जिलसाद मलिक। आई एम स्टूडेंट इन 5th ईयर, बेलग्रोड नेशनल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी इन रसिया। पहले बेलग्रोड नेशनल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में आपको ऑल कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। बेलग्रोड ही नहीं, सब सारे ऑल यूनिवर्सिटी। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी खुद ने विजिट की हुई है यहाँ पे। तो पहली बात जो हम बात कर रहे हैं, बेलग्रोड जो यूनिवर्सिटी है, बेलग्रोड नेशनल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंडियनों का एक बैच ऑलरेडी पास आउट होकर निकल चुका है, और बाकी जो अभी है यहाँ पे फाइनल ईयर में चल रहा है, तो अराउंड यहाँ पे अभी 170 के करीब यहाँ पे टोटल बच्चे हैं जो इंडियन है। यहाँ पे बाइलिंगुअल नहीं है, सब लोग बोलते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है कि जहाँ 3 साल रशियन 3 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक सब्जेक्ट है जो एक दो हैं जो कि कई बार हमें रशियन में पढ़ाए गए हैं, बाकी सब लगभग इंग्लिश में ही हुआ है हमारा, और पूरे एग्ज़ाम इंग्लिश में होते हैं। दूसरी जो यहाँ की बात है, मैं आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूँ। यूनिवर्सिटी बेलग्रोड नेशनल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी 1876 में पहली बार यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे मेडिकल स्टार्ट हुआ है। मेडिकल स्टार्ट होने के बाद अराउंड 2012 से यहाँ पे इंडियन आने स्टार्ट हुआ है। 2011 से फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियन आए हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे पहले जो फीस थी वो थोड़ी कम थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, कैंपस बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट बात है कि हॉस्टल की, जो कि सबसे अच्छा है, तो उसकी वजह से इसकी थोड़ी फ़ी है। मैं मानता हूँ बाकी कॉलेजेस बाकी कंट्रियों के अलावा शायद हाई हो सकती है, आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, बट मुझे शायद सही लगता है उस हिसाब से। आई थिंक ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा कम नहीं है। यहाँ की जो अभी की नाउ फीस है वो $4,900 है, करीब इंडियन रुपीज़ में होगी हमारे 3,40,000, मतलब 340। दूसरी बात, हॉस्टल। Age-old traditions alongside modern educational methods, proactive instruction, practical learning, joint programs with foreign partner universities, opportunities to achieve double diplomas, science schools as an effective material and technical foundation for learning, 7 halls of residence, sporting and cultural facilities, award-winning creative troops and sports teams. All these things make Belgorod State National Research University the regional centre for science, education and culture. BSU is a member of the Association of Leading Higher Education Institutions of Russia and a founder member of the Shanghai Cooperation Organization network of universities. BSU is in the top 20 best universities in the country according to the Ministry of Education and Science. Around 23,000 students from all regions of Russia and 80 countries around the world begin their journeys in science, the creative arts and business at Belgorod State University. There are over 180 courses that can be taken at all levels, offering bachelor, speciality and master's degrees. Many continue on to achieve doctorates from this university. BSU has 18 dissertation councils. Teaching staff includes 14 academicians and more than 1,100 doctors and candidates of science. It is the largest university in the region and trains specialists for all branches of the economy: engineers, doctors, teachers, lawyers, economists, psychologists, translators, diplomats, journalists, political scientists, sociologists and project managers. Reacting to the needs of the labour market, the university now includes an enhanced programme of engineering specialities. These include courses in IT and robotics, nanotechnology, biotechnology, material science and mine engineering. The university has serious scientific potential and provides a solid foundation for work in scientific research. The university is a great example of a contemporary higher education in which science and practical and theoretical training are combined harmoniously. These days, the university attracts teachers from all over the world and has dozens of agreements on cooperation with foreign universities and scientific centres. BSU implements around 20 joint educational programs with leading foreign universities at this time. This places the university among the leading universities in Russia in terms of the number of foreign students and fosters academic mobility. As part of its comprehensive programme,
BSU is focusing on foreign language education. A key priority for the university is cooperation with the business community and the expansion of partnership with Russian and international enterprises. Over 40 core departments, including clinically based ones, operate partnerships under the auspices of the university. Alongside the development and renewal of its scientific laboratories, the university continues to strengthen its cultural and sports facilities. Students from outside Belgorod are provided with comfortable halls of residence. BSU is one of the best universities in Russia for physical education and the promotion of a healthy lifestyle for students. The coaching staff of the university have nurtured many outstanding athletes, including champions at regional, national, and international levels, and this includes Olympic medal winners. Energetic and talented students will always find something to their liking in the Youth Culture Centre, where their creativity is developed and encouraged. The university's achievements and victories at the highest levels in all fields of endeavour have garnered the appreciation and affection of the general public. More than 5,000 students graduate annually from BSU. The university counts among its alumni academicians in the Russian Academy of Sciences, revered doctors and teachers, Olympic champions and businessmen, CEOs and top commercial managers, and heads of local and national civil service departments. Graduates of the university go on to successful careers because, as well as developing their knowledge, they grow in self-confidence while studying at Belgorod State National Research University, a university with age-old traditions that looks to the future. हॉस्टल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं तो वो हॉस्टल के भी इंक्लूड करके देता है, सारी चीज़ें आपको बता के देता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपका हॉस्टल लाइक 5 मतलब एक होटल जैसा है, बहुत अच्छा, मतलब जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो है यहाँ पे। आपको फ्री, सबसे पहले वॉशिंग मशीन, आयरन की फैसिलिटी जो हॉस्टल में मिलेगी फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कुछ नहीं देना आपको। दूसरा जो हम यहाँ पे है कि आपको जो हॉस्टल फीस है वो पर मंथ, अगर आप 3 सीटर रूम में रह रहे हैं तो आपको मिलेगा, आपको पे करना पड़ेगा 1500 रूबल में पे होता है, तो मतलब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अराउंड 1600 रूबल, मतलब 1600 रुपये में आपको मात्र 1 महीने के लिए रहने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन, आयरन और सारी फैसिलिटीज, फ्रिज सब मिलते हैं आपको। तो और कहीं आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 2014 में मेरा एडमिशन हुआ था। यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट उसके पास गए, बाकी जाने के बाद उसने हमें बताया कि हमारी जो फ़ी है वो $4,900 है। हम लोग एग्री हो गए, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है 4,900। जब हम यहाँ आ गए तो हमें पता चलता है कि हमारी कॉलेज की फ़ी है वो $3,900 है। मतलब वो बंदा उसमें भी $1,000 खा रहा है।
फिर उस कुछ दिन के बाद इशूज़ यहाँ पे पैदा हुए, इशूज़ होने के बाद में उसको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा उसके। अब बात है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो आप पूछोगे एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन कुछ नहीं है, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की है, और उससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और आपको जो लाने ले जाने का जो बाकी चीज़ है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे, हर चीज़ के लिए आपका यहाँ पे जितना केयरिंग होगा, आपका इंडिया का वीज़ा, बाकी जितने भी आपके काम होंगे सारे हम करा के देंगे आपको। तो आप बोलोगे कि अगर आप भी करा रहे हैं फिर आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर में फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क है दोनों में। बिकॉज जो आपकी फ़ी है वो $4,900 है, वो आपको किसी को नहीं देनी, आपको सीधे इंडिया से किसी यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के टाइम में एक स्लिप प्रोवाइड कराएगी, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे कर सकते हैं। आपको हमें देने की या किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी बैंक में जाइए वहाँ से सीधा पे कर दीजिए। दूसरी जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंक है, जो इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 3,40,000 का राउंड होता है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो फिर होता है हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल का बिल्कुल आपको पे नहीं करना। हॉस्टल फ़ी के नाम पे सिर्फ आपको पर महीने पे करना है, वो है 1,500 रूबल। अगर आप रुपीज़ में बताएंगे तो रुपीज़ में आपका होगा 1,600 का अराउंड। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो ये ज़्यादा नहीं है, ये तो नॉर्मल इतना चलता ही है सबका। तीसरा जो हम बात करते हैं, तीसरी जो हो गई वो हो गया आपको एडमिशन का, कि एडमिशन आपको लेना कैसे है। आपको सबसे पहले आपको पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के बाद 12th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट के बाद आपकी 10th की मार्कशीट भी मांगते हैं तो वो भी होना ज़रूरी है। और एक परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो करीब यहाँ पे 60% मिनिमम चाहिए आपको, 60 तो चाहिए ही चाहिए। 60 अब मतलब से कम तो मुश्किल ही है, बट फिर भी एक बार अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ। दूसरा, आप अगर आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजते हो, हमें भेजते हो या यूनिवर्सिटी को भेजते हो डायरेक्ट, तो आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपका एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, 3 दिन के। बाकी की तरह नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद से बना के दे देगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रियल में आपको एडमिशन लेटर ही मिलता है, वो आप यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म करा सकते हैं। दूसरा जो आपका अदर कॉस्ट है कि अब टोटल बजट कितना होगा। टोटल बजट की अगर हम बात करते हैं, अगर $4,900 फ़ी है, $400 इंटू 6 फ़ी हुई, वो हो गई 29,400 मतलब अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 20 लाख 40,000 का राउंड ये आपको बनते हैं। अगर डॉलर ऊपर नीचे होता है तो वो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी या ज़्यादा भी हो सकती है। फिर कुछ लोग पूछते हैं नहीं यहाँ आप बताते कुछ हो बट फ़ी कुछ एक्चुअल में कुछ और होती है, मतलब बजट जितना बताते हैं उससे ज़्यादा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, जितना बताया जाएगा इतना ही लगेगा आपका, क्योंकि आपकी फ़ी है जो एक्चुअल फ़ी है जो आपकी 20,60,000 के 20,60,000 या 40,000 का राउंड, क्योंकि मैं फिक्स नहीं पता मुझे, क्योंकि आज भी रेट ऊपर नीचे होता रहता है डॉलर का, तो उस हिसाब से आपका इतना आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पे कैसे करना है। पे ये यहाँ का एक, जब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के साथ आपको बैंक अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा के देगी। आप किसी भी बैंक में जाइए, पंजाब नेशनल, HDFC, कहीं भी चले जाइए, आप सीधा जाइए वहाँ पे और वो फॉर्म दिखाइए, उसमें बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर देगा और वो सीधा उसके अकाउंट में डाल दीजिए। तुरंत कॉलेज आपको मैसेज या मेल के तरह आपको बता देगा कि आपकी फ़ी आ चुकी है, और आपको इन्विटेशन लेटर, मतलब कि इन्विटेशन लेटर होता है कि जो आपको इनवाइट कर रहा है, कि अगर यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है जिसके बेसिस पे आपके वीज़ा लगेंगे, उसको बोलते हैं इन्विटेशन लेटर। तो वो आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद में आप अपना वीज़ा लगवाइए। वीज़ा लगवाने के बाद जैसे अब हम हैं तो हम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में, वीज़ा लगवाने में, बाकी आपके टिकट विकेट में भी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको पता नहीं है ये चीज़, तो हम आपको ला के आएंगे। दूसरी बात जो होगी आपकी, अगर जैसे यहाँ पे राउंड ट्रिप भी टिकट की बात करते हैं तो करीब आना जाना वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे, तो वो आपका 30,000 to 35,000 में हो जाएगा। दूसरा जो होगा हमारा